Okay, so hello again. Let's continue with permutation and combination. अभी मैं आपको going to tell you three properties, three important formula you can call, three important properties you can call it. So 15 players हैं, 11 playing हमें find करने. So how many ways we can do it? We can do it in 11 ways. Now, suppose you are actually in the selection committee. You have these 15 players lined up and you have to select any 11. How are we actually going to do that? Are you actually going to do that? So what you can do is you can say sir जो best वाला है वो ले लेंगे, sir ये ले लेंगे, sir उसको ले लेंगे. नहीं, you don't know anything about them. You just have to pick any 11 of them. What are we going to do? Like simply a layman is there and he has to pick a team. It is not going to be in practical, but ultimately there should be something who have no idea about their capabilities. Then only they are at equal chance of getting the chance. तो अगर इक्वल चांस देना है तो हमें पता नहीं होना चाहिए, बायसिंग नहीं होनी चाहिए. सो व्हाट आई विल डू एक्चुअली इज आई विल पुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. चलो ये आ जाओ. दैट इज वन वे. मतलब 15 में से 11 पिक किया और नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट? नंबर ऑफ वेज विल बी 15C11. एनी अदर आइडिया? Think of it, any other plan, any other execution idea. How are we going to select those 11 from 50? Think of like this. Suppose you have to select 99 of 100. 100 में से आपको 99 ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं. 100 में से 99 लोग हमें पिक करने हैं. क्या करने वाले हो? Definitely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 99 नहीं करने वाले हो. What you are going to do is you are simply going to pick one and push him out. Go away. And one person is gone. You already have those 99 and that will be selected. In the same way, 15 में से 11 पिक करने की जगह एक काम करो ना, 15 में से कोई 4 पिक कर लो. Pick any 4 from the 15 and say you are not playing. That's it. So in this case you got a team of 11. In this case you got a team of 11. Now can anyone tell after the selection which method did you choose? Whether you choose this method, picking up 11 or picking up 4. Can anyone tell you? Not, because they are actually non-differentiable. You cannot differentiate between these two because they are actually equal. इस केस में आपको क्या मिलेगा? एक 11 का टीम and 4 people out on the bench. In this also you will get 11 का टीम and 4 people out on a bench. It means this has to be equal. It means this has to be equal. This is very important property which I am going to convert to N and R. So I can say कि अगर ये NCR है तो that will equal to 15 सेम है. तो N में से R पिक करना will be same as N में से बाकी के जो बच्चे वो पिक करना. जैसे 15 में से 11 पिक करना या फिर रिमेनिंग 4 पिक करना, एक ही बात है. तो N में से R पिक करना will be same as picking how many? कितने बच गए? अगर R पिक कर चुके हैं तो दूसरा तरीका होगा N-R को पिक करना. देखो ये N है, R है, N है, R है और 4 क्या है? N-R. 4 क्या है? N-R. So N में से R पिक करो या रिमेनिंग N-R, going to make no difference at all. Everything will be same. And this is your first property or first formula you can call it. कि NCR is equal to NC(N-R). Let me show you mathematically how it happens. Mathematically, if you say, so this will be N factorial upon R factorial, N minus R factorial.
एंड राइट में अगर देखोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। r मतलब सफिक्स, n मतलब प्रीफिक्स, ऐसा बोल सकते हो। What do you see? n और n कैंसिल हो गया, n माइनस r, ये तो सेम नहीं है, एक्चुअली दे आर। हाउ कम? ये देखना, n और n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, r और r कैंसिल, मतलब दे आर एक्चुअली इक्वल टू ईच अदर। तो मैथमेटिकली भी मिला और प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि n में से r पिक करो या बाकी के n माइनस r, बात बराबर है। 15 में से 11 पिक करो या बाकी के 4, एक ही बात है। 15 में से 10 पिक करो या फिर बाकी कितने बचे? 5। तो 10c5 should be same as 15c5 should be same as 15c10। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? There are 2-3 kind of methods we are going to use. First is कि suppose we have to find 15c12। अब 15c12 का वैल्यू कैसे निकालोगे? What I said कि start with 15/12 और -1 करते जाओ जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है, और you can say 12 टर्म लिख लो नीचे, 12 टर्म लिख लो ऊपर, and that is going to be very painful. So what we can do is I can say कि 15c12 is equal to 15 minus 12 मतलब 15c3। Now it will become very simple. तो 15/3 से स्टार्ट करेंगे, then 14, 2, 13, 1 and same आंसर। काफी सिंपल हो गया, बट सेम तो लग रहा है सेम होगा। लेट्स फाइंड आउट। तो ऊपर आया 15, 14, 13, 12, 11 up to 4, 3, 2 and 1. Denominator is 12, 11 and so on up to 4, 3, 2, 1. 15/12, लेकिन हमें क्या करना है? ऊपर सिर्फ 12 टर्म ही लिखने, और 12 टर्म लिखने हैं तो कहां तक जाएंगे? सिर्फ 4 तक। Now what you see? You see that 4 से लेके 12 तक का टर्म और 4 से 12 तक का टर्म कैंसिल। क्या बचा? 15, 14, 13, 15, 14, 13 डिवाइडेड बाय 3 to 1 डिवाइडेड बाय 3 to 1। सो जब भी NC ये बड़ा नंबर होगा, इसके हाफ से ज्यादा हो, तो ये फॉर्मूला लगा करके हाफ से कम में ले आते हैं, तो आर थिंग विल बिकम एक्चुअली इजी। फॉर एग्जाम्पल 15c11 था, अब 15c11 फाइंड करना है, तो इट्स बेटर टू फाइंड 15c15 minus 11 and that will be 15/4 and then 14, 3, 13, 2, 12, 1 आया, काम खत्म। काउंट भी नहीं करना है, जैसे नीचे 1 आया काम खत्म, there will be R term automatically. So that is one application. We can call it application number 1. But more importantly, let me tell you, application number 2. Suppose we are given NCA is equal to NCB, then what does it mean? NCA equal to NCB का मतलब क्या हुआ? So there are two meanings of this. First, A equal to B होगा, भाई 15c5 equal to 15c5, इसमें तो क्या सोचना है? 15c5 equal to 15c5, but actually एक और आइडिया है, and that is A plus B should be equal to N. तो आप A पिक करना और B पिक करना, दोनों सेम तभी होगा जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि 15 में से 11 पिक करना वो सेम एज 15 में से 4 पिक करना, इन दोनों का सम 15 के इक्वल है। सो यहां पे इन दोनों का सम n के इक्वल है। और यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वे कि NCA इज इक्वल टू NCN माइनस A, NCR equal to NCN minus R, and which is equal to this implies that N minus A equal to B.
n minus a equal to b, that gives me n equals to a plus b, और वही यहां लिखा हुआ है. So the idea is कि अगर NCA equal to NCB है तो या तो A equal to B होगा या फिर A plus B equal to N होगा. तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया कि कभी जरूरत पड़ेगा कैलकुलेट करने का, but this is very important. We are going to use this extensively. So always remember this. For example, the question will be 21C 14 equal to 21C A. Then find value of A. So we know that कि इन दोनों का सम 21 होना चाहिए. So we get 21 is 14 plus A, that gives me A equals to 7. तो 21 में से 14 पिक करोगे तो 7 will be remaining. मतलब अगर 7 पिक करोगे तो 14 will be remaining. तो nobody will know कि आपने 7 पिक किया या 14. They will be safe. एक और एग्जांपल लेट मी से 20C 2R equal to 20C 4R minus 4. Find the value of R. 20C 2R equals to 20C 4R minus 4. Or let me change this. 2R. Not going to make any difference. That's okay. So this is the question. So the whole idea is कि इसको यूज कैसे करने वाले हैं. तो either R will be 2R minus 4 A equal to B, या फिर A plus B equals to N. A is R, B is 2R minus 4 equal to this. That gives me 3R equal to 24 to R equals to 8. And in this case we get R equal to 4. तो R equal to 4 भी चलेगा और R equals to 8 भी चलेगा. यूजुअली हम ये सेकंड वाला पार्ट यूज करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट यूजुअली आप स्किप कर जाते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर आर 2 केसेस नॉट 1. दीज आर 2 केसेस नॉट 1. सो दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2. ओके, लेट मी से कि अभी वो कैप्टन जो था पहले, दैट इज नॉट एनी मोर अ कैप्टन. एक न्यू सिलेक्शन कमिटी आई, अ न्यू सिलेक्शन कमिटी टेल्स कि विल फाइंड अ कैप्टन आल्सो. सो नाउ व्हाट इज आवर टारगेट? वी हैव टू फाइंड 11 प्लेइंग प्लेयर्स इंक्लूडिंग 1 कैप्टन. +1 नहीं है, इंक्लूडिंग 1 कैप्टन. हमें कैप्टन भी सिलेक्ट करना है और बाकी के 10 प्लेयर्स भी सिलेक्ट करने हैं. तो आई कैन से कि 10 प्लेइंग plus 1 captain we have to pick. So what would be your thought process? What will be you actually doing? Number of ways की बात नहीं करो, NCR की बात नहीं करो, एक्चुअल क्या करने वाले हैं. लाइक इन लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई सेड कि 15 में से 11 पिक करने क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और ये कैसे 1 2 3 4 आउट. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आपको 15 में से 10 प्लेयर्स प्लस 1 प्लेइंग कैप्टन ऑब्वियसली, तो टोटल 11 प्लेयर्स पिक करने हैं जिसमें से एक कैप्टन भी होगा. सो द आइडिया इज, पॉज कर लो और सोचो. आई एम गोइंग टू टेल यू एंड देयर विल बी नॉट 1 बट देयर विल बी 2 वेज. फिर से पॉज कर लो, फिर से सोच लो. आई एम गोइंग टू टेल यू एंड द आइडिया इज कि 15 में से कोई 11 प्लेयर पिक कर लो, फिर उस 11 में से एक कैप्टन पिक कर लो. सिंपल. 15 में से यू पिक एनी 11 प्लेयर्स हु आर गोइंग टू प्ले और उसी 11 में से एक कैप्टन पिक कर लो. वैसे एक आइडिया और है. एंड सेकेंड आइडिया इज 15 में से 15 में से एक कैप्टन पिक कर लो और फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं 14 उसमें से बाकी के 10 प्लेयर पिक कर लो. कि पहले कैप्टन पिक करके अलग करते हैं, फिर उसकी हेल्प लेकर के बाकी के 10 पिक करेंगे. दिस इज अ थॉट प्रोसेस विच इज एक्चुअली नॉट केस हियर बिकॉज
कोई किसी का आइडिया नहीं ले रहा है, एकदम रैंडम सिलेक्शन है, बिकॉज एवरीबॉडी इज इक्वली केपेबल, समथिंग लाइक दैट. सो 15 में से 11 पिक करो, उस 11 में से 1 पिक करो, या फिर 15 में से 1 कैप्टन पिक कर लो और बाकी के बचे 14 में से बाकी के 10. वी कैन ऑल्सो से कि 15 में से कोई 10 प्लेयर पिक कर लो, बाकी 5 बचे, उसमें से कोई एक कैप्टन पिक कर लो, चलेगा? इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दैट इज कि 15 में से जो 10 पिक किए उनके कैप्टन होने के चांसेस तो खत्म हो गए. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज 3 मेथड्स? ये तीनों मेथड सही हैं या रॉन्ग हैं? दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. सो एक्चुअली दिस मेथड विल नॉट वर्क. लेट मी शो यू. 15c10 will be 15 factorial upon 10 factorial 5 factorial into 5c1 will be actually 5 factorial upon 5 minus 4, 5 minus 1, that is 4 factorial into 1 factorial. What we see? ये दोनों cancel हो गया. 15 upon 10 1 4. In this case, if you see, that will be 15 say 1, and this will be बाकी का 14 से 10. What are we getting is 15 into 14 factorial upon 10 factorial into 4 factorial. Now, if we solve this, ये देखो 4 4 कैंसिल हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या मिला? ये 15 factorial. Okay, so now we are going for property number 2 or formula number 2 you can call it. First formula क्या था? NCR equal to NCN minus R, and this is something different. So again we are going to play cricket, continue playing cricket, like we have 15 players and we have to select any 11 of those. लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है. अब जो कैप्टन पहले फिक्स था वो नहीं रहा है. So now we have to find 10 players and 1 captain also. How are you actually going to do this? I'm not talking about NCR. NCR नहीं चाहिए मुझे, number of ways नहीं चाहिए. Actually, what you are going to do, like what I said in the last question. Last question बोला मैंने कि आपको 15 में से 11 पिक करने हैं. तो what we did? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और दूसरा तरीका क्या था कि 1 2 3 4 go away. So this way we can find a team of 11. ऐसे ही इस केस में आप क्या करोगे? When we have to pick a team of 11 including 1 captain भी. So there are 2 ways of doing this. Pause कर लो और सोचो. I am going to tell you. And the idea is कि 15 में से कोई 11 पिक कर लो. Pick any 11 of 15 और फिर उस 11 में से एक कैप्टन पिक कर लो. हो गया काम खत्म. एक और आइडिया बोलता है कि 15 में से कोई 10 पिक कर लो जो नॉन कैप्टन वाले हैं, और बाकी के बचे 5 में से पिक अ कैप्टन. वैसे एक और आइडिया, 15 में से एक कैप्टन पिक कर लो, and then remaining 14 में से remaining 10 players. So these are not 2 but 3 ways. What are we going to get here? Let's see. 15 में से 11 पिक करना मतलब 15 से 11 ways. अब नंबर ऑफ वेज पे आ जाते हैं. मेथड 3 हो गए. क्या? पहले कैप्टन पिक कर लो, फिर बाकी के 10 प्लेयर, या फिर पहले 10 प्लेयर पिक कर लो फिर एक कैप्टन, या फिर पहले 11 के 11 प्लेयर पिक कर लो फिर उस 11 में से एक कैप्टन. तो 15 में से 11 पिक किया, दैट कैन बी डन इन 15 से 11 वेज. एंड देन 11 में से 1 कैप्टन पिक किया, दैट इज 11 C1, और आपस में वो मल्टीप्लाई होंगे बिकॉज एंड यू हैव टू पिक अ टीम एंड यू हैव टू पिक अ कैप्टन. इन दिस केस 15C10 into 5C1, 15 में से 10 प्लेयर, बाकी 5 में से एक कैप्टन. 15 में से कोई एक कैप्टन और बाकी 14 में से कोई 10 बाकी के प्लेयर्स. सो दिस इज व्हाट
we are going to get. These three are going to be equal because ultimately what we are getting is a team of 10 plus 1 captain. तो कोई भी मेथड यूज करेंगे सेम आंसर आता है, तो all these will be actually have same number of ways. Let's see how. 15C11 into 11, C1 is 11 actually. हाँ, NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, NCn का वैल्यू NC0 के इक्वल होगा और इसलिए 1 होगा. कैसे? NCr इक्वल टू NCn माइनस r NC0. तो दिस मेथड्स वी ऑलरेडी नो. ये हुआ हमारा 15C10 into 5C1, that is 5. This gives me 15C1 is 15 into 14C10. Now सॉल्व करने पे तो सब एक दूसरे की इक्वल ही आएंगे, बट आई एम गोइंग टू स्किप दिस एंड गोइंग टू राइट ओनली दिस. 15C11 into 11 equals to 15 into 14C10. Now I can rewrite them as 15C11 equals to 15 by 11 into 14C10. Now look at this, understand this and keep watching till you get the whole idea. This is actually nothing wrong with this and you have understood this calculation. And now I am going to make it a formula. 15 की जगह let me write n और 11 की जगह let me write r. NCr इक्वल टू क्या लिखा है? 15 का 15 है तो दैट इज n, 11 का 11 है दैट इज r, 15 का 14 हो गया मतलब n माइनस 1, 11 का 10 हो गया दैट इज r माइनस 1. एंड दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 2. NCr इक्वल टू n बाय r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1. बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, रेयरली यूज होता है, बट ये जो हमने अभी देखा था ना कि 15C3 का वैल्यू फाइंड करना है तो 15 by 3 लिखते हैं और फिर -1 करते जाते टिल वी गेट डिनोमिनेटर में 1. यही से आएगा, देखना. 15C3 कैन बी रिटन एज 15 by 3 into 14C2. 15 minus 1, 3 minus 1. Then 15 by 3 पहले से. 14C2 will be 14 by 2 into 13C1. And that gives me 13 by 1 into 12C0. और 12C0 का वैल्यू 1 होता है तो नो नीड टू राइट. NC0 का वैल्यू 1 होगा. भाई n ऑब्जेक्ट में से आपको 0 ऑब्जेक्ट पिक करने. इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट? देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज लाइक दिस कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. तो यू हैव not selected anyone, you have not done anything, so that is only one way that you are actually not doing anything. So this is how we are going to use this. आगे और भी 1-2 क्वेश्चंस आएंगे जहां पे बहुत मिनिमम यूज होता है. इट इज नॉट वेरी मच यूजफुल. इफ यू से कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस तो फिर तो काफी कम यूज है, बट इसका यूज करके ये जो मैंने मेथड आपको बताया है दैट इज वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट, सो वी कैन यूज दैट टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनसीआर व्हेनेवर नेसेसरी. क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में एनसीआर के फॉर्म में ही आंसर दिया होता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सो दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर third formula, which is very, very important. So we are going to do the third profile now. Third profile, or you can say third formula. Third formula is always, again, I will say again about this same cricket. What is happening कि 15 में से 11 pick करना है. Selection committee में थोड़ी लड़ाई हो गई आपस में. They fought with each other that a particular player will play and half of them are saying he will not play. So let's take that player as Sachin. So some of them are saying that Sachin will play and some of them are saying that Sachin will not play. So how many of you think that Sachin should play? Maybe you have not
saw him playing or something like that. I cannot take any other name. So let's do it Sachin only. And how many of you think Sachin should not play? And if you think Sachin should not play, then just stop the video and don't watch any further. I don't want to teach you. So the idea is कि Sachin अगर खेलेगा तो ही purpose solve होगा. It is not like that. Half of the team is saying, half of the selection committee is saying, or less than half, a couple of them, or only one of them, that Sachin will not play. Okay, let's take the both cases into consideration. So if I say कि Sachin will not play, और second case is Sachin will play. अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, what do I get? I will get all the possibilities. I will get all the possibilities. बोलो yes or no? Sachin or no Sachin. You are getting a team. सचिन वाला केस भी ले लिया, नॉन सचिन वाला केस भी ले लिया, मतलब सारे केसेस हो गए ना. So that will be total. Now tell me how many ways we can pick a team of 11 from 15 if Sachin, who is among these 15, is not going to play. अगर ये प्ले नहीं करने वाला है तो we have बाकी के 14 में से सारे के सारे 11 हमें चाहिए होंगे. We have to pick all those 11 from those 14 remaining. And if we say कि Sachin is going to play, then how many ways we can do this? Then we have to select only 10 out of 14. सचिन यहां से कम हुआ लेकिन यहां नहीं, क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया था. यहां सचिन दोनों में कम हुआ क्योंकि हमें पिक करना है. तो रिमेनिंग 10 from remaining 40. And it is equal to total number of team and that will be 15C11. Think of this. कोई भी टीम की बात कर लो, या तो सचिन होगा या सचिन नहीं होगा, कुल मिला के सारे टीम आ गए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 15C11. नाउ the same formula I am going to convert to n and r. एक काम करो, खुद से ट्राई करो n और r में कन्वर्ट करने का, and then we will see. तो I am going to do it. This is NCR plus 14 is 14, तो n will be n. 11 का 10 हो गया, मतलब r का r minus 1 हो गया. Equals to 14 का 15 हो गया, मतलब n plus 1. 11 remain 11, r remain r. And that is your property number 3, or you say formula number 3, which is the most important formula. This is very important formula. You should always keep this in mind. So the formula is NCR plus NCR minus 1. NCR plus NCR minus 1 equals to n plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 equals to n plus 1 CR, and that is your third and the final formula. बस ये तीन ही फॉर्मूले हैं. One was NCR equal to NCN minus R. Second was NCR equal to n by R, n minus 1 CR minus 1. And third is NCR plus NCR minus 1 equal to NCR. Now I am going to show you how we are going to use them. So let's take one example. 5C5 plus 6C5 plus 7C5 plus 8C5 plus 9C5 plus 10C5. ये हमें फाइंड करना है. तो there are so many ways to solve this, but one method is, ऐसा कुछ फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या? जब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना, बहुत सारे NCR लिखे होते हैं जिसमें n चेंज हो रहा होता है, r नहीं. r चेंज होगा तो बायनोमियल थ्योरम में सिंपल तरीके से हो जाएगा. इफ n इज चेंजिंग तो आपको ये सेम टू सेम प्रोफाइल, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बायनोमियल थ्योरम में भी मिलेगा. प्रोफाइल नंबर 4 में मिसलेनियस टाइप के प्रोफाइल होते हैं कि जब n चेंज होगा तो क्या होगा. सो व्हाट वी सी हियर इज कि बहुत सारे टर्म्स हैं. जब ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, 2 टर्म्स ग्रुप हो गए, सिंगल टर्म में रिड्यूस होते जाते हैं. सो सी दिस 5C5 को कैन आई राइट 6C6.
5C5 1 होगा, 5 में से 5 पूरे के पूरे सेलेक्ट करने हैं 1, और 6 में से 6 सेलेक्ट करने वो भी 1 होगा. सो दीज टू आर एक्चुअली सेम. 5C5 equals to 6C6. Now can you tell me what is the value of this? And this is NCR 6C6 plus NCR minus 1 6C5. NCR and NCR minus 1. That will be equal to N plus 1 CR. Take your time, think about it. NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. Now, ये दोनों ग्रुप करो. What do we get? NCR plus NCR minus 1. NCR plus NCR minus 1 will be N plus 1 CR. Next, क्या होगा? फाइनल आंसर तक आप जा सकते हैं, पॉज कर लो. This will be NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. This will be 10C6 and then this will be 11C6. And that is your answer. Think of it. What are we going to do? This is 11C6. चेन रिएक्शन यू कैन कॉल इट, न्यूक्लियर फिजन जैसा चेन रिएक्शन, एक के साथ एक दो कंबाइंड होते जा रहे हैं और फाइनली वी गेट अ कंप्लीट चेन. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली यूज्ड, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली सॉल्व्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो जब भी बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे तो मोस्टली इट विल बी यूज्ड. सो इन सो मेनी केसेस दिस formula is used. This is very, very important formula. So you always have to remember this. Now think of any practical understanding of this. इस ये क्रिकेट में हम कैसे सेट करेंगे, that you have to pick. I can give you an idea कि 11 टोटल प्लेयर्स हैं, उसमें से हमें 6 पिक करने. 11 में से 6 प्लेयर्स हमें पिक करने हैं who are going to do the first practice. Suppose 11 players प्लेइंग वाले हमने पिक कर लिए. नाउ वी हैव टू डू प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस. नेट प्रैक्टिस में 6 लोगों का एक बार में टीम जाएगा, बस 6 लोग ही प्रैक्टिस करेंगे. फिर नेक्स्ट जो 6 होंगे सेकेंड राउंड में आएंगे, तो वो 6 हमें पिक करने. हाउ आर वी गोइंग टू अरेंज दीज इनटू दैट सिनेरियो? जैसे यहां क्या था, सचिन खेलेगा और सचिन नहीं खेलेगा, 2 पार्ट में बचा. वहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में है. Somehow try to manage that as a daily routine life of cricket. क्रिकेट में अगर ऐसा हो तो 11C6 को कैसे ब्रेक करेंगे? Think of it, not for much time. बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना. अगर मैनेज कर पाओ तो that's okay, नहीं तो okay, no issue at all. You will be able to solve the question. Always remember कि एक 5C5 होगा, उसको 6C6 लिखना है और रिएक्शन चालू हो जाएगा. इसमें गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ होती है, लेट मी से 15C10 प्लस 14C10 प्लस 13C10 प्लस 12C10 प्लस 11C10 प्लस 10C10. ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें दिस 10C10 वाला एक्चुअली आउट ऑफ प्लेस था. आउट ऑफ प्लेस था. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट इट एट अ प्रॉपर प्लेस. तो अगर NCN से स्टार्ट है या RCR से स्टार्ट है और NCR तक गया है, तो फाइनल आंसर, इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड विदाउट सॉल्विंग, कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर? कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Look at the first question और उसका आंसर, look at the second question और उसका आंसर क्या होगा. तो if you see लास्ट में 10C5 था और आया क्या 10 plus 1 C5 plus 1, तो यहां क्या आंसर आएगा? 11C11 is the wrong answer, क्योंकि इसमें लास्ट वाला ये नहीं है, ये तो फर्स्ट है, लास्ट ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16C11.
You have to start, so you can start from here. This is what? This is 11C11. NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. फिर NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. फिर NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. So what I can tell you कि RCR, R plus 1 CR, R plus 2 CR और up to NCR सफिक्स सबका सेम है, R है, और प्रीफिक्स R से स्टार्ट हुआ है और कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू N, एंड द आंसर विल बी, आई कैन से दिस इज अ रिजल्ट. This is a result. If you want, you can learn, you can remember, else that's okay. और finally आंसर आएगा n plus 1 C R plus 1. Answer will be n plus 1 C R plus 1. So if you want, you can learn this, you can remember this. So ऐसे ही questions आते हैं, लेकिन एक और question let me try. 20C10 plus 21C10, 22C10 up to 30C10. This is another question. 20C10 से लेकर के 30C10 तक का वैल्यू फाइंड करना है. And the answer is not 31C11. 31C11 नहीं होगा, because उसमें RCR से स्टार्ट होना चाहिए. स्टार्टिंग शुड बी एट 10C10. वो नहीं है, तो you cannot do that. So what I am going to do that, I am going to do 10C10 plus 11C10 plus 19C10. ये मैं प्लस और माइनस कर देता हूं. So if I do this minus and then I do this plus, so I will get 10C10 plus 11C10 up to 30C10 हो जाएगा. Think of it. ये जो पार्ट है ये यहां पे मैंने ऐड किया, तो ये पूरा का पूरा यहां चला गया और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली वही लिखा हुआ है. नाउ यू कैन टेल मी कि वैल्यू ऑफ दिस विल बी 20C11 90C10. तो +1 +1 20C11, क्योंकि 10C10 से है. एंड दिस विल बी, वहां पर 10C10 से है 30 तक, तो दैट विल बी 31C11. सो आंसर विल बी 31C11 माइनस 20C11. तो इट मे स्टार्ट विद RCR, it may end to RCR, or there may not be any RCR. So what is this profile exactly? How do you identify कि ये वाला set होगा? This formula we are going to use, or on the एकदम basic level we are going to use this formula. कब? How do you know? And you know it when suffix is same and prefix is changing. Suffix is same, prefix is changing. Suffix is same and prefix is changing. इसका जो second method है, that includes a knowledge of geometrical progression and binomial theorem. So let me give you a hint of that. In this case, I can say कि जो second method होगा, that tell me कि this is coefficient of x power 10 in what? अगर आपको बाइनोमियल का थोड़ा बहुत आइडिया है तो यू विल बी एबल टू टेल मी कि दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 1 प्लस x पावर 20. कोएफिशिएंट, ये बॉक्स बनाने का मतलब मेरा है कि इसका कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 1 प्लस x पावर 20 विल बी 20C10. बाइनोमियल का आइडिया नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो फिर आपको पहले बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा. और 21C10 क्या है?
1 प्लस एक्स पावर 21 में एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट, फिर 22 से 10 इज 1 प्लस एक्स पावर 22 में एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट, और फाइनली 30 से 10 क्या है, 1 प्लस एक्स पावर 30 में एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट. Now what we are getting is this is basically a GP. तो अब आपको GP पता होना चाहिए, और GP का फॉर्मूला होता है A into R का पावर n. n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 20 से 30 तक 10 टर्म्स नहीं होते हैं, 11 होते हैं. 30 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स A into R power n minus R upon R minus 1. Finally what we see that कि इसमें x पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, और ये सीधा x एक सिंगल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई कैन से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन द न्यूमरेटर विच इज 1 प्लस एक्स पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 20, which is again binomial का कॉन्सेप्ट. x पावर 11 का कोफिशिएंट आएगा 31c11 minus 20c11, that is this. So this is your another method of solving the same question which involves GP का sum as well as binomial expansion में number of term. So that is your profile number 3, or you can say example formula number 3. So we are going to continue. Thank you.